Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for class 12th accountancy. Class, today we are going to have the revision session for our partnership accounts chapter, first chapter, that is your chapter number 2 as per the NCERT of part A, and the name of the chapter is your fundamentals of partnership. Class, in this particular chapter we are going to have these particular topics which are very much important, and the topics are journal entries, ledger posting, manager's commission, interest on loan paid to partners, and then it is your rent paid to partners, interest on drawings, adjustment in close accounts, and guarantee to a partner. So class, let's begin with our first topic, that is the journal entries. Class, when we talk about journal entries, we are having some 6 different transactions with us. The very first of them is the entry for interest on capital paid to partners, interest on capital which we have to pay to the partners on their capital contribution. So the entry will be interest on कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल को क्लास हम लोग इसमें क्रेडिट कर देंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, and all of the expense and income which relate to the partner will be written off from the P&L appropriation in place of P&L account. तो ये जो हमारे खर्चे हैं वो हम लोगों को P&L appropriation में राइट ऑफ करने हैं. तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आती है क्लास हमारे पास में P&L appropriation account debit to interest on capital. Is it clear? ओके, सो दिस विल बी द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 2 एंट्रीज हैं, एक आएगी हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल के लिए और एक आएगी हमारे पास में P&L एप्रोप्रिएशन के लिए. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है क्लास हमारे पास में सैलरी स्लैश कमीशन पेड टू पार्टनर्स. तो इसके लिए ये भी देखिए, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो करेंगे सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट. On the other hand, this will be credited to partners capital account. Is it clear? एक चीज और, अगर हमारे पास में कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, तो अगर हमारे पास में कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर ये सारी चीजें जो हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल की जगह पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स. ओके, so salary account, salary or commission account debit to partners capital. If it is the fixed capital then it will be partners current, and the next entry for this will be same which we have passed above, that is P&L appropriation account debit, P&L appropriation account debit to salary slash commission account. Is it clear? These will be the journal entries for the expenses such as interest on capital as well as the salary and commission. Now the next we are having is the entry for interest on drawings. हम लोगों को interest on drawings की journal entry देखनी होगी क्लास. तो थर्ड पर हमारे पास में आता है interest on drawings, and for interest on drawings the journal entries will be partners capital account debit. ये हम लोगों को पार्टनर से लेना है तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे partners capital account debit टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हमारे लिए इनकम थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोगों ने क्रेडिट करा. इज इट क्लियर? और सिमिलरली इसकी सेकेंड एंट्री जो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की होगी वो बनेगी हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इज इट क्लियर? ओके, तो ये थर्ड एंट्री थी हमारे पास में क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड. नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग, जब हमें प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को हमारे P&L अकाउंट से लेके P&L एप्रोप्रिएशन पे रिकॉर्ड करना होता है. वी हैव टू ट्रांसफर आवर प्रॉफिट, सो एंट्री फॉर दैट विल बी P&L अकाउंट डेबिट. P&L नाम की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट करा, और P&L एप्रोप्रिएशन नाम की लाइबिलिटी स्टार्ट करी हम लोगों ने, तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एक लाइबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट करा, और सेकंड लाइबिलिटी क्रेडिट स्टार्ट हो गई है तो उसको हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन नाम से क्रेडिट कर दिया. इज इट क्लियर? और अगर लॉस होता तो इसी के हम लोग अपोजिट एंट्री कर देते, दैट विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L. ऑलराइट क्लास, इसके बाद में क्लास 2 एडिशनल एंट्रीज और हैं हमारे पास में. सबसे पहला तो आता है रिजर्व्स के लिए, और फिर उसके बाद में सेकंड पे है क्लास
आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि आपको रिजर्व बनाने हैं और साथ ही में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए जब आपको रिजर्व बनाना होगा तो एंट्री आएगी आपके पास में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, फिर उसके बाद में आपको अपना P&L एप्रोप्रिएशन क्लोज करना होगा और फिर उसके बाद में प्रॉफिट निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। उस प्रॉफिट को हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद आप एंट्री करेंगे उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड द एंट्री विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस होगा तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्लास यहीं पे हम लोग बात करते हैं लेजर अकाउंट के बारे में, लेजर पोस्टिंग के बारे में। तो एक तरफ हम बना रहे हैं हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, दिस विल बी द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज इट क्लियर? on the other hand we are preparing our partners capital account। नेक्स्ट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सपोज मान लीजिए हमारे पास में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ए और बी दो पार्टनर है हमारे पास में, ओके, एंड यू हैव टू प्रिपेयर लेजर फॉर देम, दिस विल बी द ए एंड दिस विल बी द बी, ए एंड बी, ये दोनों हो गए हमारे पास, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका बिजनेस अभी नया नया स्टार्ट होता है, पार्टनर जो है वो फंड लेकर आ रहे हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं क्लास बाय बैंक, और नहीं तो फिर अगर आपको कोई ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हों तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इज इट क्लियर? और उसी के साथ में P&L एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए, P&L एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए क्लास यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो एंट्री अभी हमने देखी थी, दैट इज P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा बाय P&L, इज इट क्लियर? ओके, P&L आ गया। उसके बाद में आप देखिए अब हम लोगों को जो दूसरी चीज़ें थी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सभी चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन में नोट करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट पार्टनर्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल के लिए है इनकम, लेकिन हमारे लिए फर्म के लिए है एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आएगा क्लास हमारे पास में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे अमाउंट्स आ जाएंगे ए का और बी का, और फिर उसके बाद में यहाँ पे टोटल। लेकिन वहीं ये पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये अमाउंट्स आ जाएंगे। फिर सिमिलरली हमारे पास में सैलरी है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी, या फिर ये बाय कमीशन भी आ सकता है, इज इट क्लियर? फर्म के लिए एक्सपेंस है तो इधर टू साइड पर ही चलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में टू सैलरी स्लैश कमीशन, दोनों में जो जिधर भी अमाउंट होएगा हमारे पास में ए का होगा तो यहाँ आएगा और बी का तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे, इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद मान लीजिए अगर पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं, तो ड्राइंग्स करेंगे तो सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू साइड पे दैट इज टू ड्राइंग्स, ये हमारी कैपिटल को करेगा कम, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आप अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड द अमाउंट्स विल बी देयर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इज इट क्लियर? फर्म के लिए इनकम है तो इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अमाउंट्स आ जाएंगे ए और बी, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का टोटल, इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दिस क्लास देखिए हम लोगों ने सारे एक्सपेंसेस और इनकम के एडजस्टमेंट कर लिए, उनको हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग कर दी है। इसके बाद अब मान लीजिए अगर आपको रिजर्व्स बनाने हैं, आपको प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना था, तो फिर हमारे पास में यहाँ पर एंट्री होगी दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, आपके पास में रिजर्व्स आ जाएंगे। फिर ऐसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको पहले अपना P&L एप्रोप्रिएशन क्लोज करना होगा। P&L एप्रोप्रिएशन क्लोज करने के लिए आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर हमारे डेबिट कॉलम पे आता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हमें हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग द पार्टनर्स। और अगर बैलेंसिंग फिगर हमारे क्रेडिट कॉलम पे आता है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर लॉस, ओके। फिर आपको लॉस अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में। अभी हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास में प्रॉफिट है और हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिर टू पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा ए और बी के अंदर, और फिर टोटल आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आपका ये लेजर बंद हो जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बन गई है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा था, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पर गए और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि दिस विल बी द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस होता तो वो यहाँ पर आ जाता, दैट विल बी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर कोई लॉस हमारे पास में है। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द टॉपिक दैट इज जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग। इज इट क्लियर क्लास? नाउ let's have a discussion towards the manager's commission, interest on loan paid to partners as well as rent paid to partners। क्लास एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, पूरी पार्टनरशिप में ये तीनों टॉपिक जो हैं, यानी कि मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर्स और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स, अगर ये तीनों टॉपिक हमारे पास में क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा क्लास कि आपको पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं क्लास हम लोग? क्योंकि मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर्स और उसी के साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स, ये तीनों ही चीजें हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो हमें उसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है इन स्पाइट ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स कमीशन। अगर हम मैनेजर्स कमीशन की बात करते हैं तो क्लास ये हमारे पास में दो तरीकों से निकल कर आएगा। एक रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए और हमें कौन सा प्रॉफिट दे रखा है, विच प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड बाय अस एंड विच प्रॉफिट इज प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन। सपोज मान लीजिए वो कहता है कि मैनेजर्स कमीशन इज टू बी चार्ज ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपको एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें से सैलरी तो माइनस हो गई हो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया, हमें प्रॉफिट चाहिए। अब हम देखेंगे सपोज नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉट एवर द डेट इज बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज इतना इतना, यानी कि उसने आपको जो प्रॉफिट दिया है उसमें से अभी तक ना तो सैलरी माइनस हुआ है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ है। तो अब हम कंपेयर करके देखेंगे, हमें चाहिए कौन सा था जिसमें से सैलरी माइनस हो गई हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सैलरी को माइनस कर देंगे और फिर जो हमारे पास में प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हम लोग हमारा रेट ऑफ कमीशन चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ फॉर चार्जिंग द रेट ऑफ कमीशन वी आर हैविंग टू डिफरेंट मेथड्स विद अस। द वेरी फर्स्ट इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बाय डिफॉल्ट यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है क्लास हमारे पास में रिक्वायर्ड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, रिक्वायर्ड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। इज इट क्लियर? लेकिन मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन में बोलता दैट मैनेजर्स कमीशन इज टू बी चार्ज ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, अगर ये बात आती दैट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, यानी कि वो ये चाह रहा है कि प्रॉफिट में से कमीशन भी चार्ज हो गया हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल क्लास? हम लोग तो कैलकुलेट कर रहे हैं कमीशन, तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे? तो उसके लिए क्लास हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जैसे उसने कहा था कि भाई सैलरी माइनस हो गई हो कमीशन ना हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सैलरी माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हम लगाएंगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाली रेट, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये वाली रेट हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये रेट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास हमारे पास में? इसका फॉर्मूला आएगा रिक्वायर्ड प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट आपको चाहिए, सपोज था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उस रिक्वायर्ड प्रॉफिट पे हम लोग अप्लाई कर देंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इज इट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका मैनेजर्स कमीशन है 10% पर एनम का, सपोज इट इज ऑफ 10% पर एनम, ओके, देन हाउ विल यू कैलकुलेट? तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, यानी कि ये 10 अपॉन 110 हो जाएगा, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास में। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज अबाउट द मैनेजर्स कमीशन। और एक चीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा टू साइड पे, एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो रिकॉर्डिंग कहां पर करनी होगी आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि अगर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो उससे पहले आपको पी एंड एल अकाउंट से
मैनेजर्स कमीशन माइनस करना होगा, फिर जो भी आपका बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इज इट क्लियर क्लास? ओके, चलिए इसके बाद क्लास हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर रेंट पेड टू पार्टनर्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स। तो क्लास एक चीज देखिए, मैं आपको इन दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर है हम लोगों के पास में इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स, ये है सपोज हमारे पास में, और इधर आता है क्लास हमारे पास में रेंट पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड टू पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, रेंट पेड टू पार्टनर इज अ इनकम फॉर द पार्टनर, तो जो रेंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो सेपरेट लोन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री आती है हम लोगों के पास में, जब आप लोन लेंगे सबसे पहले तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ये तो आपने लोन लिया है उसकी एंट्री हो गई है, पार्टनर्स लोन नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, एक अकाउंट ओपन कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद में जब इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग तो एंट्री बनेगी क्लास इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इज इट क्लियर? और सिमिलरली यहाँ पे रेंट के लिए क्या एंट्री बनेगी क्लास, रेंट नाम का एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, तो ये हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पे पार्टनर्स करेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और रेंट अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में शो होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ये है क्लास की ये दोनों ही एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, यानी कि ये दोनों ही एक्सपेंसेस को हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो द सेकेंड एंट्री विल बी, दोनों में कॉमन एंट्री होगी क्लास हमारे पास में, दैट इज योर P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इज इट क्लियर? और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड टू पार्टनर्स। इज इट क्लियर? दोनों ही चीजें हमारे P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगी। क्लियर है बात? ओके, नाउ let's move further, let's talk about the another one, and that is your interest on drawings, adjustment in close accounts and guarantee to a partner.